تو فلم کی شروعات ہوتی ہے پہاڑوں میں بنے ہوئے ایک غار سے، اور اس غار کا کلوز شاٹ دکھانے کے بعد ہمیں دو لڑکیوں کو دکھایا جاتا ہے، ایبی اور اس کی بہن بین۔ ایبی کی موم کے مرنے کے بعد ایبی کے لیے اس کی پوری دنیا ہی اس کی بہن بن چکی تھی۔ ان کی زندگی بہت اچھی چل رہی تھی، لیکن بس تب تک جب تک انہیں یہ نہیں پتا چلتا کہ بیتھ کو لاسٹ سٹیج کینسر ہے۔ یہ سن کر بیتھ ٹوٹ جاتی ہے پر ہار نہیں مانتی۔ وہ بیتھ کے علاج کے لیے نئے طریقے ڈھونڈنے لگ جاتی ہے، اور اسے ایک ایسی فارماسیوٹیکل ریسرچ کمپنی کے بارے میں پتا چلتا ہے جنہوں نے کینسر لاسٹ سٹیج کا علاج ڈھونڈ لیا تھا، لیکن وہ علاج بہت زیادہ مہنگا تھا۔ اتنے پیسے ایبی کے پاس نہیں تھے، تو ایبی نے ایک بہت ہی خطرناک جاب کرنے کا فیصلہ کیا۔ یورپ اور رشیا کے سرد بارڈر پر اسے ایک جیولوجسٹ کی جاب ملی، جہاں اسے یورینیم ڈھونڈنا تھا پہاڑوں میں۔ یہ جاب بہت ہی زیادہ خطرے والی تھی، یہاں تک کہ اس جاب میں اس کی جان جانے کا بھی خطرہ تھا، لیکن اس جاب سے کیونکہ اسے اچھے پیسے مل رہے تھے، اس لیے وہ مان گئی۔ ایبی دل لگا کر اپنا کام کرتی ہے۔ کافی دن کی محنت کے باوجود بھی انہیں کہیں یورینیم نہیں ملتا، تو ایبی اپنے کلیگ سے کہتی ہے کہ ہمیں پہاڑوں کے اور گھنے جنگلوں کے اندر جانا چاہیے۔ اس کا کلیگ یہ خطرہ لینے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس میں اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور ویسے بھی آگے کی طرف رشین بارڈر شروع ہونے والا تھا، جہاں جانا بھی انہیں الاؤ نہیں تھا۔ نا امید ہو کر ایبی گھر آ جاتی ہے، اور رات میں ایبی کو اس کے ڈیڈ کی کال آتی ہے، جو اسے بتا رہے تھے کہ بیتھ کی طبیعت اور بھی زیادہ بگڑ چکی ہے۔ ایبی کو ایک ٹینشن یہ بھی تھی کہ کمپنی نے اسے کوئی ایڈوانس نہیں دیا تھا، کم از کم جس سے وہ اپنی بہن کا علاج ہی سٹارٹ کروا سکے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اسے پیسے چاہیے تو اسے یورینیم ڈھونڈنا ہوگا، اسی لیے اگلے دن وہ گھنے جنگلوں کے اندر جانے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ اس کا کلیگ اسے وارن کرتا ہے کہ اندر جنگلی جانور بھی ہوں گے، اور اس کا کلیگ اس کے ساتھ جانے سے انکار بھی کر چکا تھا، اس لیے ابھی اس سے گن لیتی ہے اور اکیلے ہی اپنا سفر شروع کر دیتی ہے۔ کافی دیر تک چلنے کے بعد اسے عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگتی ہے۔ اسے لگا جیسے کوئی جانور اس کے قریب ہے۔ اس نے فوراً اپنی بندوق تان لی، لیکن تب اس کی نظر نیچے پڑے ہوئے ایک خالی پتھر پر گئی۔ ایسا لگا کہ جیسے آواز اس پتھر میں سے آ رہی تھی۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا تو یہ پتھر اسے کافی قیمتی لگا۔ ایسا پتھر اس نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، حالانکہ وہ ایک جیولوجسٹ تھی، یعنی زمین اور پتھروں پر اس نے اچھی ریسرچ کی ہوئی تھی۔ ایبی اسے اپنی بیس میں واپس لے آتی ہے، لیکن اس کے بارے میں اپنی کمپنی کو نہیں بتاتی، کیونکہ اسے یہ پتھر کافی قیمتی لگ رہا تھا، اور اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اس پتھر کو بیچ کر خود ہی بیتھ کے علاج جتنے پیسے اکٹھے کر لیں۔ اسی ٹائم پر دوبارہ اسے اس کے ڈیڈ کی کال آ جاتی ہے، جو اسے بتا رہے تھے کہ بیتھ کی طبیعت اور بھی زیادہ بگڑ چکی ہے، اسی لیے ایبی فوراً گھر جانے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ جاتے ہوئے اس نے اپنے کلیگ کو بتایا بھی تھا کہ وہ یہاں پر واپس شاید کبھی نہیں آئے گی۔ اس علاقے سے نکلنے کے لیے ایبی کو آگے سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے جانا تھا۔ وہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ جاتی ہے، اور آدھے راستے میں ایبی کھڑکی کے باہر ایک عجیب سی چیز نوٹس کرتی ہے، جو پہلے تو اسے ایک پرندے کا پر لگتا ہے، لیکن جیسے ہی ہیلی کاپٹر اس سے ٹکرا کر کریش ہونے لگا، تب وہ سمجھی کہ یہ کچھ اور تھا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے جب ہوش آیا تو اس نے دیکھا ایک پائلٹ پہلے ہی مر چکا ہے اور دوسرا بری طرح زخمی ہے۔ وہ اس کو فرسٹ ایڈ دیتی ہے، اور پھر مدد بلانے کے لیے ریڈیوز تلاش کرنے لگ جاتی ہے۔ اس سے پہلے ریڈیو بھی نہیں ملا، اور ہیلی کاپٹر کا کمیونیکیشن سسٹم بھی تباہ ہو چکا تھا۔ جیسے ہی ایبی کو یہ احساس ہوا کہ وہ کسی کو مدد کے لیے بلا بھی نہیں سکتی، تو وہ پینک ہو گئی۔ اب اپنی اور پائلٹ کی جان اسے خود بچانی تھی۔ وہ میپ اور کمپس نکال کر یہ پتہ چلاتی ہے کہ اس کا سب سے قریب والا روڈ بھی تقریباً 60 کلومیٹر دور تھا، جہاں جانا اس موسم اور حالت کے ساتھ آسان نہیں تھا۔ رات ہو چکی تھی، اور رات میں ایبی نے آگ جلائی اس امید میں کہ کوئی انہیں دیکھ لے گا، اور ساتھ ہی پائلٹ کو سردی سے بچانے کی بے حد کوشش کی، لیکن اس کی کسی بھی کوشش کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پائلٹ صبح ہونے سے پہلے ہی مر گیا، اور آگ بھی کسی نے نہیں دیکھی، اور نہ ہی کوئی مدد کو آیا۔ ایبی جان گئی کہ یہاں رہ کر مدد کا انتظار بکواس ہے، اسی لیے وہ یہاں سے سپلائز، کھانے پینے کی چیزیں، ایک گن اور ریڈیو واکی ٹاکی لے کر سفر پر نکل گئی۔ واکی ٹاکی کے سگنلز بیٹری لو ہونے کی وجہ سے بہت ہی زیادہ ویک تھے۔ ایبی نے ہیلی کاپٹر کی بیٹری سے اس واکی ٹاکی کو چارج کیا، اور تبھی اسے اسی واکی ٹاکی میں جان نامی کسی بندے کی آواز سنائی دی۔ حیرت کی بات تھی کہ جان کا بھی ہیلی کاپٹر کریش ہوا تھا، اور وہ بھی قریبی ایریا میں گرا تھا۔ وہ بتاتا ہے کہ آس پاس اس کے ایک لیک ہے اور ایک جنگل ہے۔ اس کی حالت بھی کافی خراب تھی، کیونکہ اس کی باڈی کے کئی حصے کام نہیں کر رہے تھے، اور اس کی ٹانگ تو بری طرح زخمی تھی۔ وہ بتاتا ہے کہ اس کا بھی کمیونیکیشن سسٹم ڈیمیج ہے، جس کی وجہ سے وہ ریسکیو نہیں بلا سکتا، لیکن اچھی بات یہ تھی کہ جان کے پاس اچھی سپلائز اور اچھا ریڈیو تھا، جسے ایبی اپنی بیٹری اور مہارت سے ٹھیک کر کے اس کے ذریعے مدد بلا سکتی تھی۔ اس نے میپ پر چیک کیا، جان صرف 30 کلومیٹر دور تھا، جبکہ روڈ 60 کلومیٹر دور تھا،
तो एबी ने जॉन के पास जाने का फैसला किया, पर जॉन ने उससे कहा, तुम गलत करोगी कि रास्ता बहुत ज़्यादा खतरनाक है और जिस उम्मीद में तुम आ रही हो क्या पता मेरे इक्विपमेंट्स भी काम ना करें। एबी ने अपना फैसला अटल रखा क्योंकि उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं था कि वो 60 किलोमीटर का रास्ता तय करके पहले रोड पर जाए और फिर वहाँ जाकर मदद का इंतज़ार करते रहे। उसे अपनी बहन के पास जल्दी पहुँचना था। रास्ते में उनकी बातें चलती रहती है और एबी बताती है कि वो एक जियोलॉजिस्ट है। तो जॉन फौरन उससे कहता है, फिर तो तुम यहाँ पर यूरेनियम ढूंढने आई होगी। और ये सुनकर एबी शौक रह जाती है। उसे ये बात कैसे मालूम थी? रात में एबी एक शेल्टर लगाती है और आराम करने से पहले अपने बैग में उसी ब्लैक कलर के पत्थर को चेक करती है। वो इस पत्थर को उलट पुलट कर देख ही रही थी कि हैरानकुन तौर पर उसके हाथ में वो पत्थर अपनी शेप बदलने लगा। एबी जैसे जैसे उसे मोड़ना चाहती, जैसे जैसे उसे शेप करना चाहती, वो वैसे वैसे बदल रहा था। अभी और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई कि आखिर ये है क्या। कोई भी पत्थर इस तरह से अपनी शेप नहीं बदल सकता। क्या ये कोई एडवांस टेक्नोलॉजी है या फिर कोई एलियन रॉक? खैर अगली सुबह होते ही एबी ने अपना सफ़र शुरू कर दिया। बर्फ़ के इस इलाके में वो बिल्कुल अकेली थी। जॉन लगातार उससे रेडियो पर बात करने की कोशिश कर रहा था, पर एबी अब उसे डांट देती है और कहती है कि अगर इस तरह हम रेडियो पर बात करते रहे तो हमारी रेडियो की बैटरी जल्दी डाउन हो जाएगी और फिर मैं तुमसे कांटेक्ट भी नहीं कर पाऊंगी। रेडियो बंद करके वो अपने सफ़र पर फोकस करने लग जाती है और अब उसके सामने एक नया चैलेंज आ जाता है कि उसे एक सीधी पहाड़ी के ऊपर चढ़ना था जो इंतहाई मुश्किल काम था। एबी को लगा कि शायद वो ये नहीं कर पाएगी। वो इसके बारे में जॉन को बताती है तो जॉन कहता है, ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ। मैं याद रखूंगा कि तुमने मेरे लिए कोशिश की थी और प्रे भी करूंगा कि तुम्हारी बहन जल्दी ठीक हो जाए। एबी उदास हो गई। नाउमीदी से उसने कहा कि वो भी ठीक नहीं हो रही। तब जॉन ने उसे समझाया कि तुम हर किसी को नहीं बचा सकती एबी। ये सुनकर उसे गुस्सा आता है और वो जॉन को डांट कर कहती है, इस टाइम मुझे किसी नसीहत की नहीं बल्कि मोटिवेशन की ज़रूरत है ताकि मैं आगे बढ़ती रहूं। जॉन कहता है, ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगता है करो। एबी इस मुश्किल पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर देती है और जब सपोर्ट नहीं मिलती तो ऊपर चढ़ने के लिए अपने चाकू का इस्तेमाल करती है, लेकिन एक पॉइंट पर आकर उसका चाकू भी पहाड़ी में फंसकर टूट जाता है और अब उसका ऊपर चढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। एबी को इस टाइम वो स्टोन याद आता है जिसकी वो शेप चेंज कर पा रही थी। वो स्टोन को निकाल कर उसे एक चाकू की शेप देते हुए उसके ज़रिए ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है और ये स्टोन उसकी बहुत सारी मुश्किलें आसान कर देता है। उससे अपने आप को ऊपर करवाती है और आखिर पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाती है। चोटी पर चढ़कर उसे महसूस हुआ कि नीचे उतरना और भी ज़्यादा मुश्किल था। ये एक खाई जैसा था, अगर वो गिर जाती तो मर जाती। उसने उस स्टोन को अब लंबी रोप की शक्ल दी और उसके जरिए आखिर वो नीचे भी उतर गई। नीचे उतरते ही उससे फ़ौरन जॉन ने कांटेक्ट किया और उसे बताया कि आगे रशियन सरहद है, अगर तुम वहाँ तक गई तो तुम्हें देखते ही गोली मार दी जाएगी। ये सुनकर एबी डर गई। वो पीछे मुड़ने ही लगी थी कि गलती से उसका पाँव स्लिप हो गया। पाँव के नीचे से पत्थर सरके और वो भी ढलान से नीचे जा गिरी और इस वजह से उसकी टांग भी बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी। उसने अपने टांग पर पट्टी बांधी और अपना सफ़र दोबारा से शुरू कर दिया क्योंकि उसे रुकना नहीं था। वो चलती रही यहाँ तक कि शाम होने लगी और फाइनली उसे एक बस्ती दिख गई। एबी जिसे मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी वो फ़ौरन उस तरफ बढ़ गई, पर दुख की बात कि वहाँ पर एक इंसान भी नहीं था। थकी हुई थी तो उसने रात यहीं गुजारने का फैसला किया। भूख उसे लगी थी, खाना तो उसे मिला लेकिन वो ख़राब हो चुका था। वो अब अपनी ज़ख्मी टांग की पट्टी करती है और अपने आप को एक ताकत का इंजेक्शन लगाती है। सुबह होने पर एबी की आँख कुछ आवाज़ों से उसे यहाँ करीब एक रशियन सोल्जर दिखा। वो डर चुकी थी क्योंकि वो यूरोप से आई थी और यहाँ पर पकड़ी जा सकती थी, इसीलिए वो फ़ौरन छुप गई। उस सोल्जर को भी शक हो चुका था, इसीलिए वो एबी के पीछे इसी घर में आ घुसा। एबी के पास एक गन भी थी। उसने ये गन तैयार कर ली और जैसे ही सोल्जर उसके सामने आया उसने ये गन उसके ऊपर तान दी। सोल्जर भी उसके ऊपर गन ताने हुए था लेकिन एबी ने पहले ही उसकी टांग पर गोली मार दी। हालांकि एबी का मकसद सोल्जर को नुकसान पहुंचाना था भी नहीं, गोली उससे गलती से चली थी। डरी हुई वो सोल्जर की राइफल भी ले लेती है और उससे उसका बैग मांगती है जिसमें सप्लाईज थी। अब हैरान कर देने वाली बात ये थी कि जो ब्लैक कलर का स्टोन उसके पास था वैसा ही एक स्टोन इस सोल्जर के पास भी था, जो स्टोन अपनी शेप बदल सकता था और कई किस्म के काम भी कर सकता था। इस टाइम सोल्जर की वॉकी टॉकी से किसी ने कांटेक्ट किया। जिस भी आदमी ने इस सोल्जर से कांटेक्ट किया था उसकी आवाज़ बिल्कुल जॉन की आवाज़ से मिल रही थी। एबी शॉक रह गई कि कैसे कोई एक इंसान
اس سے जॉन बन के और सोल्जर से कोई और बन के बात कर सकता है। वो समझ गई कि ये सारी कहानी उस स्टोन के साथ मिली हुई है। सोल्जर की वॉकी टॉकी से वो जॉन से पूछती भी है कि आखिर तुम हो कौन और चाहते क्या हो, लेकिन अब वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। खैर अब वो इस जख्मी सोल्जर की मदद करती है, उसकी पट्टी करती है और उससे पूछती भी है कि अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मैं तुम्हें तुम्हारी बेस तक पहुँचा सकती हूँ। सोल्जर मान जाता है क्योंकि वो भी रास्ता भटक कर यहाँ तक पहुँचा था। जॉन एबी से अभी तक कांटेक्ट में था, लेकिन ये लोग उसके इरादे नहीं जानते थे। ये दोनों भी अभी तक जख्मी थे और आगे बढ़ना दोनों के लिए ही मुश्किल हो रहा था। मजे की बात थी कि ये दोनों दुश्मन थे, एक यूरोप से था तो एक रशिया से था, लेकिन यहाँ पर ये लोग दुश्मनी नहीं दिखा रहे थे क्योंकि दोनों ही जानते थे कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। ये लोग आगे बढ़ते जा रहे थे और सोल्जर का जख्म और भी ज़्यादा बिगड़ता जा रहा था। यहाँ जॉन भी एबी को अजीबोगरीब बातें कह रहा था, जैसे वो उसके दिल में दूसरे सोल्जर के लिए डर डालना चाह रहा हो। एबी समझ गई कि जॉन का कनेक्शन ज़रूर उस काले पत्थर से है जो उसके पास है, इसीलिए वो डरते हुए काला पत्थर ही अपने बैग से निकाल कर दूर फेंक देती है। और इसी दौरान वो देखती है कि सोल्जर जो पीछे था उसके पाँव के नीचे की लेक की बर्फ टूट चुकी थी और वो इसी लेक में गिर चुका था। एबी मदद के लिए उसके पीछे तो जाना चाहती थी, लेकिन उसके पाँव के नीचे से भी बर्फ टूट गई और वो भी लेक के अंदर गिर गई। लेक का पानी इतना ठंडा था कि उसने पूरा जिस्म एबी का जमा दिया, पर एबी फिर भी अपने आप को सहारा देते हुए मुश्किल से ही सही लेकिन बाहर निकल आई। चिल्ला चिल्ला कर उसने मदद की आवाज़ें लगाने की कोशिश की, कोई उसकी मदद को ना आया। उसने अपनी मदद खुद की और सारे अपने गीले कपड़े उतारे ताकि उसकी जिस्म की गर्मी बरकरार रह सके। इस टाइम पर उसे जॉन की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। गुस्से में उसने रेडियो की बैटरी तक निकाल के फेंक दी, लेकिन फिर भी वो जॉन की आवाज़ को सुन पा रही थी। आखिर थकन और चोटों की वजह से उसे इस ठंड में भी नींद आ। नींद में उसे अपनी बहन के साथ गुजारे सारे खूबसूरत पल याद आ रहे थे। कुछ ही देर बाद उसकी आँख यहाँ हेलीकॉप्टर की आवाज़ से खुली। वो खुश हो गई। अपनी ताकत को जमा करते हुए वो उठी, जो कि वो हेलीकॉप्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती थी ताकि हेलीकॉप्टर उसकी मदद कर सके। लेकिन एबी इतनी वीक थी कि वो हेलीकॉप्टर्स को सिग्नल देने में नाकाम हो गई। अब एबी ने देखा कि वो एक गार के पास खड़ी थी। एबी की हिम्मत जवाब दे गई थी। उसके दिमाग ने काम करना छोड़ा तो वो वहीं बेहोश होकर गिर गई। लुढ़कते हुए वो गार के अंदर चली गई और ये वही गार था जो हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। इस गार में गर्म पानी था जिसने एबी को नई जिंदगी देना शुरू की। इसी पानी में हम एक स्केलेटन को देखते हैं, यानी एक मरे हुए आदमी को देखते हैं जो पायलट के यूनिफॉर्म में था और उस पर जॉन का नाम लिखा हुआ था। जॉन, जिससे एबी पूरे रास्ते बात करती आई थी, क्या वो मर चुका था? है यहाँ बहुत से चमकते हुए काले पत्थर बहते हुए ऊपर आते हैं और एबी की बॉडी के साथ जुड़ जाते हैं। उसे जब होश आया तो वो घबरा गई क्योंकि वो किसी अजीब जगह पर पहुंच चुकी थी जहां हर जगह पहले जैसे ही काले पत्थर थे। सभी पत्थर हवा में उसके इर्द गिर्द उड़ रहे थे और यहाँ एबी को जॉन की आवाज़ सुनाई देती है। वो बताता है कि किस तरह आज से 65 साल पहले वो भी एबी की तरह यहाँ आया था और फिर यहीं पर फंस कर रह गया। उसकी बात को सुनते हुए एबी समझ गई कि ये सब जो उसके साथ हो रहा है वो ना तो एक एक्सीडेंट है और यहाँ जो उसे पत्थर दिख रहे हैं वो भी कोई आम पत्थर नहीं है। वो हेलीकॉप्टर का क्रैश होना जानबूझकर इन्हीं पत्थरों ने किया था जिसकी झलक उसने देखी भी थी। वो समझ गई कि ये पत्थर एलियंस हैं या फिर कोई ऐसी क्रिएचर जिसका इंसानों को पता नहीं, पर पिछले हज़ारों सालों से दुनिया पर रह रही है। फिर यहाँ रहना उनकी मजबूरी है या मर्जी, ये कोई नहीं जानता। इन्हें जिंदा रहने के लिए इंसानों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बाकी एलियंस की तरह ये इंसानों के साथ ज्यादती नहीं करते, उन्हें मारते नहीं हैं, बल्कि उन्हें अपनी मर्जी से यहाँ रखते हैं। जैसे जॉन ने अपने आप को इन्हें अपनी मर्जी से सौंप दिया था, जिसके बाद इन पत्थरों ने जॉन को ज़िंदगी तो दी, लेकिन वो ज़िंदगी नहीं दी जो एक इंसान की थी। अब जॉन एबी से सवाल करता है कि अगर तुम भी ऐसी ज़िंदगी चाहते हो तो तुम्हें भी मिल जाएगी, पर एबी जवाब दे देती है क्योंकि वो इस एलियन सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। वो सिर्फ अपनी बहन के पास वापस लौटना चाहती थी। उसके कहते ही अगले ही पल वो जादुई तौर पे अपने घर के सामने खड़ी थी, उन सारी मुश्किलों से दूर। एकदम से उसकी लाइफ इतनी मुश्किलों से निकलकर एक परफेक्ट लाइफ बन गई थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था
वो अंदर गई तो अंदर जाकर अपनी बहन से मिली, पर हकीकत तो ये थी कि ये सब सच था ही नहीं। ये सब कुछ बस एलियंस ही उसे दिखा रहे थे। वो जब वापस होश में आई तो वो अपने घर के दरवाजे के आगे खड़ी हुई थी। उसने जब दरवाज़ा खोला बस सामने बर्फ़ का तूफान था। एबी उस तूफान के अंदर चली गई और यहाँ पर सीन्स ब्लर हो गए और एक फ्लैश में हमें दिखाया गया कि अब एबी को रेस्क्यू कर लिया गया था। उसकी जब आँख खुली तो वो सच में अपनी फ्रेंड के अपार्टमेंट में थी। बिना टाइम वेस्ट किए वो अपनी बहन के पास चली गई। घर जाते ही उसने देखा कि उसकी बहन अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और फाइनली एबी अपनी बहन के आखिरी टाइम में उसके साथ थी। एलियंस ने उसकी वो विश पूरी कर दी थी जो वो चाहती थी। आखिरी टाइम में वो अपनी बहन के साथ रहना चाहती थी। मूवी के एंड में एबी अपनी बहन और अपने डैड के साथ थी और उसने जॉन के कहने के मुताबिक मौत को भी एक्सेप्ट कर लिया था और अब वो अपनी बहन की मौत के लिए तैयार थी। और बस इस इमोशनल सीन के साथ ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है।